All the viewers are welcome to Dr. Tuteja Talk Show. I am sure that today's topic, issue of acne and acne vulgaris in teenagers, is very important for the teenagers as the children are growing and the parents are equally concerned about it. We have today Dr. Reena Nahar from Mumbai. Dr. Reena is MD, gold medalist in dermatology and has 10 years of experience in the field of dermatology, cosmetology, and trichology. Post MD, she has done her fellowship in cosmetology and hair transplant, has several paper presentation and articles to her credit. Director of Kaizen Skin Clinic and associated with the Nanavati Super Specialty Hospital and PD Hinduja Hospital. Dr. Raina is known for the state of art laser adopting advanced technology and cutting edge technology in her practice. If you like, subscribe the channel. Your suggestion, comments are always welcome. So, Doctor, we welcome Dr. Rena Nahar. And my first question to her is, what is acne and what is acne vulgaris? So it's a very common thing. Most of us are confused. What is acne? Acne vulgaris. What are pimples? What are blackheads, whiteheads, oily skin, seborrhea? So I'll try to explain in very simple words so that all our viewers can understand it very easily. So basically, acne is a broad spectrum. It's a medical term which includes whiteheads, blackheads, clogged pores, oily skin, pimples. It's a broad spectrum including everything that can clog our pores and give us various, grades of acne. Vulgaris is derived, it's a Latin word which means common. Acne vulgaris is a very common condition. Anything, psoriasis vulgaris. So when we say it's a common, in Latin it means common people, something that we see very commonly. It's usual, it's normal to see. So that is why today's session that you're throwing light on is very important because majority of adolescent kids, teenager kids will go through varied grades of acne, seborrhea, clogged pores through their teen years, which is a very formative time frame for us to build our confidence, our personality. And how we present ourselves, how we look, all these things also matter a lot in how, in building or shaping up the confidence. That is why it is known as acne vulgaris. Now, we'll simply classify or grade the acne. So sometimes people think I don't have acne, I have blackheads. So that is grade 1 acne. When your hair follicle is attached to the oil gland, if I can show like that. This is your hair follicle, which is coming out from the skin through a pore. And this is the oil gland attached to it. So when you started getting the clog pore, where your oil secretion is becoming too much that it is clogging the hair follicle, you will start getting whiteheads, blackheads. Correct? And when these start getting infected by bacteria, P. acnes is the bacteria present on the skin. Wherever you see a clog, you will start seeing the bacteria to multiply. So then when these bacteria multiply, they create inflammation and then we start seeing the red ones, the pustule, that is known as papules. The pus-filled ones, this is known as pustules. And sometimes they can come as a very big cyst which has a wall of itself. You can feel a lump inside the skin also. So these are cystic acne. These lumps then sometimes come out of the skin and you see a big bump on the face. So that is grade 4 cystic acne. So for all our viewers, we will simply classify it into 4 types. Okay, grade 1 is the mildest grade where you see little bit oiliness, blackheads and whiteheads. Grade 2, where the number of blackheads, whiteheads and oil secretion is more and you have begun to see the red ones also, the red little bigger acne. Grade 3, where you have started to see all the things more and you have started to see the pus filled ones coming up. And grade 4 is where you see all the lump and nodules and the cyst, nodulocystic acne, the severest form of acne, which has more chances of scarring. So for all our viewers,
Pimples, blackheads, whiteheads, red ones, pus-filled ones, cystic ones are all acne, but of varied grade and severity. So why the acne is more common in teenagers? So as we see, sir, the first decade of our life, the kids that we say, the children, so they don't have hormone stimulants. Once you hit the puberty, that time your hormones will come into play. And when we see the design of the hair follicle, the oil secret gland attached to it, the sweat gland attached to it, and the skin as a unit, we call it as pilosebaceous unit. Pilo means the hair follicle, and attached to the hair follicle is only the oil gland. So this oil gland will activate once the hormones have started to come into play, and that happens when you're teenage, when your puberty will hit. Now, Hmm. simple thing it is, sir. Suppose if I'm learning to, toddler is learning to walk. So they are going to stumble, वो कभी खड़े होंगे, फिर गिरेंगे. That stability will take some time and then they will start walking and running by themselves. Similarly, when the hormone stimulus will happen, when the puberty will be hit, the hormones will start impacting the oil glands and the oil glands will start secreting the oil. So initially, it is going to take some time for that stability to achieve, and adolescent acne or teenage acne will come into play because वो धीरे धीरे the skin will get adapted and then the oil secretion वो सब आपका एक stability तब achieve होगी. So it is the most common age group where we see acne. Hmm. So what age it usually acne start, and when does it typically improve? So ideally, to adolescent acne, we see the skin changes happening maybe 6 months to year and a half before the puberty, before actually the period start for the girls or other secondary sexual changes happen. So the oil glands will start activating before. So around 11, 12, we start seeing the acne, which can peak around 14, 15, 16. And then ideally, by 18, your skin starts to stabilize and you should start seeing clearing of skin. So there are a lot of causes and myth about acne, which is uh, in common language known as pimples, as you Ji. already told. So what are the contributing factors like do hormone affect the teenager acne as Yes. you were talking about it? सर you'll be मतलब जैसे आपको पता है सर we see majority adolescent acne and now adult acne भी बहुत बढ़ गई है बट आज की हमारी थोड़ा टीनेज की तरफ हम जाएंगे तो हम उसी पे फोकस करेंगे. So now what happens is the lifestyle what I had in my teenage is not the same what kids are experiencing today. The influx of processed food, packaged food, very high calorie diet, and lot of influx of social media, they start using skincare products also which are not age appropriate for them. So all this can hamper. Sometimes I see a lot of stress factors are there for the kids also when it comes to studies or it comes to peer pressure. So all the stress hormones will also impact. So not only hormonal imbalances like PCOD, PCOS is on higher percentage compared to what it was maybe a decade or two prior. ये पीसीओडी पीसीओएस क्या है? Basically, it is a lifestyle disorder where you see the balance between the male and female hormones is getting a little deviated, and that is why we start seeing a little bit more male dominant androgens increasing in a young child, in a young girl, and then you see androgen related changes, unwanted hair growth, bigger pores, more oil secretion, more of acne, more of scarring. These are all androgen related. जब imbalance हो जाएगा तब ये सब चीजें जो teenagers में we see very common. 1 in 4 girls now we see with PCOD, PCOS in that young age group. Second, we see because of high stress, cortisol levels are also on the higher side. This is a stress hormone. For our viewers, I'll just explain it. Stress hormone. जब भी आप stress में होंगे तो body cortisol produce करती है एक steroid है for fight and flight response. Now Hmm. this cortisol will result and stimulate the oil glands to produce more secretion, more clogging and more inflammation. तो Hmm. आप लेट सोएंगे, आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, अगर आपने एक बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं अपनाया है, तो ये सब चीजें आपकी बॉडी हमेशा एक स्ट्रेस में रहेगी एंड दैट विल ट्रिगर मोर एक्ने. Hmm.
वी हैड चाइल्डहुड वेयर वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट, हम बहुत खेलने बाहर जाते थे, हम शाम में डायरेक्टली घर आते थे खेल कूद के। आज हम देखते हैं बच्चों को इतना बिजी स्केड्यूल होता है सर, एक क्लास से दूसरी क्लास, देयर इज नो पॉइंट, नो टाइम फ्रेम फॉर अनवाइंडिंग। और उनका जो एक गेम खेलने का टाइम फ्रेम भी होता है, दैट इज ऑल्सो स्पोर्ट रिलेटेड, वो भी उनकी एक हम्म, एक्टिविटी है कि आपको हम्म, इतने से इतने बजे टेनिस खेलना है या तो आपको इधर जिमनास्टिक में जाना है। इट इज नॉट लाइक अ लीजर प्ले वेयर द माइंड इज अनवाइंडिंग। सो वो एक बहुत ज्यादा चीजें हमने देखी विच हैज चेंज इन लास्ट 10 to 15 years। और ये सब चीजों से आपका इंटेंसिटी, परसेंटेज ऑफ एक्ने इन एडोलेसेंट, द सिवियरिटी ऑफ एक्ने, एवरीथिंग हैज इंक्रीज। प्लस हम्म, सर हम क्या करते हैं, आप और हम शायद इतना इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज नहीं करें। मेजोरिटी ऑफ adolescent, they have their teenage kids, they have their own cell phone and they are glued to all the social media, और सारे influencers के उन्होंने सब्सक्रिप्शन कर दिए हैं, which is good for information, but it is very hard sir to filter कि कौन सी क्रीम लगानी है कौन सी नहीं। तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ने अच्छी बढ़िया क्रीम एंडोर्स की है, मैं भी लगा लूं, पर मैं हम्म, 14 साल की, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये मेरे लिए एज अप्रोप्रिएट है। वो सब चीजें बहुत कठिन है सर टू फिल्टर आउट फॉर द किड्स। तो हम्म, वो चीजों को थोड़ा सा अगर हम थ्रू दिस मीडियम वेयर वी आर जस्ट गिविंग आउट साइंटिफिक नॉलेज वेयर किड्स नो व्हाट नीड्स टू बी डन, तो दैट सही बात। विल मिनिमाइज सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन। हम हम्म, स्टार्ट कर देते हैं कोई क्रीम से, फिर उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, बर्न्स हो जाते हैं, तो वो सब चीजों को भी हम मिनिमाइज कर पाएंगे विद द राइट इंफॉर्मेशन। हम्म। तो आगे अगर चलूँ तो अगर मदर को पिंपल्स हुए थे और फादर को पिंपल्स हुए तो बेटे और बेटी को भी होंगे क्या है? इज देयर हाँ एनी जी, रोल ऑफ हेरिडिटरी? 100% सर। वाह। जेनेटिक्स, इनफैक्ट प्रॉपर रिसर्च ने जीन डिकोड्स भी किए हैं जिनके इनहेरिटेंस से हमको पता चल जाता है कि आपको ये चांसेस बहुत ज्यादा है। हम्म, इफ मदर हैज हैड एक्ने and severe acne, it is bound that the child is going to up to 70% chances कि उनको severe form of acne होगी। और अगर both parents have had acne in their childhood, then you are more prone for getting severe form of acne, scarring, everything। आप इन जेनेटिक्स मल्टीप्लाई। बदल, हाँ जी, आप जेनेटिक्स बदल नहीं सकते, मगर इसका फायदा क्या होता है अगर आपको ऑलरेडी पता है, यू हैव गैदर्ड दैट इन्फॉर्मेशन कि भाई एज अ पेरेंट सपोज टुडे आई नो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को एक्ने इरप्शंस थे मेरे यंगर एज में, फॉर माई चाइल्ड आई कैन टेक द केयर बिफोर हैंड। अब वो डाइट केयर है, वो प्रॉपर स्किन केयर है, वो उनका एक्सरसाइज पैटर्न है, वो उनका लाइफस्टाइल चेंज है, ये हम्म, सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है सर। हम्म, इट्स नॉट जस्ट कि आपने मेडिकेशंस लेने हैं और क्रीम्स ही करने हैं, ये सारा पैटर्न जो आप यंग इससे हर चीज में होता है इंक्लूडिंग एक्ने। कि अब आई एम डायबिटिक सो आई नो कि आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू गेट दैट, तो मैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कमिटमेंट करूंगी। सेम चीज स्किन के साथ होती है। इफ आई एम हम्म, एक्ने प्रोन, 70% चांसेस आर देयर कि माय किड्स वुड सफर फ्रॉम द सेम, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। इफ आई हैव हम्म, हैड सिवियर एक्ने, डेफिनेटली 70 to 80% चांसेस माय किड्स आर गोइंग टू गेट। हम्म। तो आप बताएंगे कि ऑयली फूड और चॉकलेट जो आजकल खूब चल रहे हैं उसका भी कुछ रोल है क्या इसमें, कि सिर्फ सिर्फ बातें ही हैं, बातों का क्या, वैसा तो नहीं है? तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ सर, अगेन जैसे ना मुझे ऐसे वो बार बार ऐसे बोलने में बुरा लगता है कि हमारा जमाना, दैट साउंड्स वेरी क्लीशे, बट जेन्युइनली हाँ, सर बच्चे माइंड कर जाते हैं अगर हम बोले हमारा जमाना। और सर हमको भी बुरा लगता है, हमें भी बहुत ओल्ड फील होता है, तो हम ये बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि हमारा जमाना नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज केयर गिवर्स एंड पेरेंट्स टू कम डाउन टू देयर लेवल एंड टॉक टू देम एज फ्रेंड्स। हम्म, जैसे ही हमने वो दीवार खड़ी कर दी हमारा जमाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आइदर टू हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड रिलेट टू ईच अदर। हम्म, इधर सबका वो लेके है बच्चे की सेहत बढ़िया हो इंक्लूडिंग स्किन। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लुकिंग गुड, इट इज अबाउट अ हेल्दी स्किन। तो इसके लिए हमारे सबसे पहले है द पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, और उनको समझना है अरे इतने से एक्ने के लिए कौन डॉक्टर के पास जाता है, कुछ मत करो, हमारे जमाने में हम कुछ नहीं करते थे, अपने आप चले जाते थे। तो हम्म, ये बोलने के बाद देन द चाइल्ड इज गोइंग टू हैव दैट वॉल। फिर तो आपने कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया, मेरी हम्म, दिक्कत ही आपको दिक्कत नहीं लग रही है, तो फिर तो हम बात ही क्या करें। तो वो हम्म, नहीं, एक चीज हमको थोड़ा सा वी हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग देयर सिनेरियो। ये जो जनरेशन है जिसमें हम सब पार्ट हैं, इट इज वेरी वेरी हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, ये सब चीजों से बहुत बच्चा का कॉन्फिडेंस घर से बाहर निकलने के बाद इट हम्म, कैन हैम्पर देयर कॉन्फिडेंस। चाहे वो अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो,
चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो एक्ने स्कार्स हो। तो हम्म, सबसे पहली चीज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ओके, वो आपने अगर कंसर्न रेज नहीं किया और बच्चे ने किया, हमें उसको एड्रेस करना है। अब सेकंड चीज आपने जो कर दी कि ओके अभी हमें करना क्या है, एक्ने शुरू हो गए हैं, आपने लाइफस्टाइल कमिटमेंट जरूर करनी है। क्योंकि पिंपल्स कोई बीमारी नहीं है, इट इज समथिंग दैट योर स्किन इज गोइंग थ्रू, इट इज एन इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, इन द स्किन। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी तो होना पड़ेगा। अगर मुझे बार बार जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, तो मैं कितनी गोलियां खाऊंगी, मुझे अपनी इम्यूनिटी पे तो काम करना ही पड़ेगा। सेम चीज आपके एक्ने के लिए, इन्फ्लेमेशन है स्किन में, जैसे फैटी लिवर के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना ही है। हाउएवर टफ इट इज। और वो बच्चों के लिए तो और कठिन होता है, क्योंकि दे गेट देयर, बच्चे हैं आफ्टर ऑल, तो आपको वो शुगर एंड कैंडी, केक्स, आइसक्रीम, सब पे आपको थोड़ा दिल ललचा जाता है। तो इसमें उनके साथ आपको रिफाइंड शुगर को रिप्लेस करना है विद गुड ऑप्शंस। प्रो हम्म, इन्फ्लेमेटरी रिसर्च है सर ये। प्रो इन्फ्लेमेटरी food items are sugar, refined sugar, dairy products can trouble with acne. There is high calorie diet, processed packaged food, fried food. ये सब चीजों से आपको जंक फूड और ग्लूटेन टू सम एक्सटेंट, जैसे हम मैदा, हम्म, रिफाइंड आटा, मैदा, ये सब चीजें जब हाई कैलोरी, फ्राइड, पिज्जा, बर्गर, ये सब आपका अगर इंटेक ज्यादा हो रहा है, तो यू आर क्रिएटिंग अगेन इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। और उसकी वजह से आपका फिर वो साइकिल शुरू हो जाएगा, कॉर्टिजोल, स्ट्रेस फैक्टर्स, ये वो एंड एवरीथिंग, वही चेन रिएक्शन स्टार्ट। हम्म, तो आपने एकदम बच्चे को नहीं बोलना है कि ये सब बंद कर दो, देखा तुमको मैंने कहा था, देखो डॉक्टर साहब भी वही बोल रहे हैं, खामा तुमने 1000 रुपीज हमारे कंसल्ट के खर्चे कर दिए। तो वो हम्म, थोड़ा सा हमें, वी हैव टू जस्ट वो रिस्ट्रेन रखना है। हम्म, उसको रिप्लेसमेंट हमें ढूंढना है सर। वो हम्म, बच्चे हैं, तो आपने शुगर बंद किया, तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया जैगरी पाउडर के साथ। मीठा तो खाएंगे, मगर उसको आप हेल्दियर वे में कर दीजिए। आप मीठा घर में बना सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली सेफ एंड वेरी हेल्दी। डेयरी फ्री, ग्लूटेन फ्री, अब तो सब सोशल मीडिया को हम अपने अच्छे के लिए यूज करेंगे, सारे रेसिपीज ऑनलाइन मिलते हैं सर। तो आप अपने दिन फिक्स कर दीजिए और पोर्शन कंट्रोल कर दीजिए। तो आपने हफ्ते में 2 बार आपने मीठा खा लिया, आपने चॉकलेट्स को रिप्लेस कर दिया डार्क चॉकलेट के लिए, जिससे आपकी गट और स्किन दोनों में बहुत फायदा होता है। आपने अपना जो हम बोलते हैं हमने चीट डेज रखे हैं, तो उसके बजाय आप एक ट्रीट मील रख दीजिए कि एक हम एक बार, एक दिन में, कुछ हफ्ते में एक बार हम एक मील में थोड़ा हम प्रोसेस्ड फूड खा लेंगे। तो जैसे आपने ये चेंजेस शुरू कर दिए, आपने मिल्क के बजाय आपने उसको रिप्लेस कर दिया कर्ड से, दही, अगेन दैट इज अ प्रोबायोटिक, गुड फॉर द गट, गुड फॉर द स्किन। तो आपकी कैल्शियम और प्रोटीन कम नहीं हुई, आपने रिप्लेस कर दिया उसको। ये छोटे छोटे चीजें जो आपने रिप्लेस कर दी, तो बच्चे का मन भी रख लिया, हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी मिल गया। आप उसके अंदर इंक्रीज कीजिए आपके ग्रीन्स, आपके नट्स, आपके सीड्स, आपका जो देसी खाना है वो आपने इंक्लूड करना है। वही है, हम्म, सेपरेट कुछ नहीं है। हेल्दी फूड, योर फाइबर शुड बी 10 ग्राम्स, योर प्रोटीन इंटेक शुड बी अराउंड 10 to 15 ग्राम्स वजन के हिसाब से पर मील। ये आपने थोड़ा बेसिक मैथ एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। तो वो आपने कर दिया, खाना पीना आपने एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिया, तो आपने मुझे कैसे कहते हैं कि एक आपने मुझे बूस्ट दे दिया टू गिव क्लियरर स्किन, डिपेंडेंसी ऑन द डर्मेट ऑल्सो रिड्यूसेस एंड यू आर गोइंग टू गेट सस्टेनेबल रिजल्ट्स। तो खाना पीना बहुत मायने रखता है, इंक्लूडिंग योर वाटर इनटेक, योर स्लीप क्वालिटी, योर टाइमिंग ऑफ स्लीप, योर एक्सरसाइज। ये पूरा आपका एकदम आपने मुझे फ्रेमवर्क दे दिया। इसके डिस्पाइट अगर हो ही रहा है, तो डेफिनेटली हम क्रीम्स, ये सब हम ट्रीटमेंट्स पे करेंगे। बट विदाउट दिस ओनली टैबलेट्स एंड क्रीम्स, विच इज द एटीट्यूड ऑफ मेजोरिटी पीपल, कि ये सब हम नहीं बदल सकते डॉक्टर साहब, हम तो रात को 2 बजे ही सोएंगे, हमको पिज्जा तो रात को लगता ही है, मगर आप कुछ कैप्सूल दे दीजिए जिससे हमारी स्किन क्लियर हो जाए। इट विल नॉट बी लॉन्ग टर्म, इट विल ओनली बी टेम्पररी। वहीं पे मैं आ रहा था कि आजकल के बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, एग्जाम और ट्यूशन और स्कूल से आए और फिर वो कोचिंग में जा रहे हैं, एंड देन दे विद द मोबाइल, so they are not able to sleep and they are in stress. Has करेक्ट। it got any effect on it? 100%। सर मैं ये मानती हूँ कि दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स। हमारा, जैसे वापस मैं नहीं बोलना चाह रही थी हमारा जमाना, आई स्टिल फील हमारा जमाना वाज लेस कॉम्प्लिकेटेड। बहुत आराम से हमने बहुत बढ़िया सा चाइल्डहुड एंजॉय किया है। मुझे लगता है कि इनका प्रेशर फॉर स्टडीज, एंड वो एवरी जनरेशन विल फील दैट कि अभी और प्रेशर तो बढ़ेगा ही लाइफ में। तो ये सब चीजों को तो डील करना ही है।
मगर इसके साथ साथ आपने पढ़ना भी है, आपके क्लासेस भी होने वाले हैं, आपका ये भी होने वाला है। द बेस्ट वे टू डील विथ इट is as a family unit you have a good quality time where you can share each other's experiences and all. सेकेंड, आपने एक्सरसाइज को बहुत और खाने को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। डी स्ट्रेस होने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। लोग वही उल्टा करते हैं, स्ट्रेस में दे बिंज ईट, जो अनहेल्दी चाहिए वो सब आपका चला जाता है टू बीट द स्ट्रेस। वो तो आपको एक नेगेटिव लूप में आकर्षित करने ही वाला है। उसी को अगर आप अपना स्ट्रेंथ बना दें एंड यू ईट वेरी हेल्दी, आपने अपने आप को पावर दे दी टू हील। अगर मैं बहुत हेल्दी हूं और मुझे अगर, जैसे सबने कोविड में देखा, द फिटर कुड सर्वाइव इट जस्ट लाइक अ जुकाम। उनको पता भी नहीं चला, टेस्ट किया तो पता चला अरे कोविड होके गए। और वही जिन्होंने अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान नहीं दे पाए थे, उनको बहुत सिवियर, हमने बहुत कुछ झेला है। हम्म, वही चीज आपकी एक्ने में भी होगी। आप जितना स्ट्रांग रहोगे विथ इम्यूनिटी, विथ फूड, विथ डाइट, विथ एक्सरसाइज एंड मैनेजिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेस जाने वाला नहीं है, उसको सिर्फ आपको मैनेज करना है बढ़िया तरीके से टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। तो उसको वो, यूज स्ट्रेस में लाना हाँ। उसको यूज स्ट्रेस में लाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एक्ने एंड एक्ने सो वल्गरिस? फर्स्ट थिंग सर, एडोलेसेंट एक्ने और अडल्ट एक्ने में फर्क है। आप जैसे एडोलेसेंट एक्ने देखेंगे तो उनको ये टी जोन जो होता है, फोरहेड एंड द सेंटर पार्ट ऑफ द फेस, यहाँ पे ऑयल सिक्रीशन शुरू हो जाती है। मतलब क्या, आपको मैं सिंपल ये बोलती हूँ, ये एरिया थोड़ी शाइनी शाइनी, आप हाथ लगाओ तो ऑयली ऑयली लगती है। सेकेंड चीज, आप सिंपल सा एक ब्लॉटिंग पेपर ले लो और उसको अपने फोरहेड पे लगाया और वहां पे आपको एक तेल का दाग दिख गया, तो ये एरिया मेरी ऑयली है। आपने चीक पे रखा बट चीक पे नहीं आया, तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है कि चीक्स मेरे ड्राई है मगर ये एरिया थोड़ी ज्यादा ऑयली है। तो ये टीनेजर्स में खास हम देखते हैं कि उनको टी जोन थोड़ा ज्यादा ऑयली होता है। वहीं पे उनको क्लॉट पोर्स आना शुरू हो जाते हैं और उनको शुरू हो जाते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एक्ने आना। और कई बार हम देखते हैं कि मतलब हायर ग्रेड ट्रीटमेंट नहीं, स्टेरॉइड से भी शुरुआत हो जाती है। स्किन को क्लियर करने के लिए, पिंपल से बचने के लिए, अब कहाँ पापा मम्मी सुन नहीं रहे हैं या उनको क्या ही बोल दें, तो हम फार्मेसी से जाके मेडिसिन ले लेते हैं कि अरे स्किन क्लियर करने के लिए दे दो, और आपको मिल गया स्टेरॉइड क्रीम। 10-15 दिन तो आप ऐसे चमकेंगे कि जैसे भी मतलब पूरे एकदम कश्मीर की कली हो जाएंगे, बिकॉज इट विल गिव यू दैट इंस्टेंट बॉलीवुड ग्लो। पहुंचा दो उनको। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर बॉलीवुड पे आपको, पहुंच जाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके बाद शुरू हो जाएगी मोर एंड मोर क्लॉग्ड पोर्स, और पूरा उसको हम कहते हैं मोनोमॉर्फिक स्टेरॉइड एक्ने। छोटे 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 दाने करके पूरे आपको शुरू हो जाते हैं। आपको रेडनेस शुरू हो जाती है। आप धूप में, आप लाइट में नहीं जा पाओगे, जैसे ही जाओगे आप पूरे लाल हो जाओगे। उसको हम कहते हैं, दिस रेडनेस नोन एज स्टीरॉइड रोजेशिया। आपकी स्किन पतली हो जाएगी, अंदर की नसें दिखना शुरू हो जाती हैं और पिंपल्स, बाल आना शुरू होते हैं। तो गलत क्रीम्स में यूज करना। तो हमें टीनेज एक्ने में टी जोन ऑयली, यहाँ पे क्लॉक पोर शुरू हो जाएंगे, तो दिस विल बी द सिम्टम्स फॉर टीनेज। अडल्ट में आपको दिखेगा लोअर हाफ ऑफ द फेस में acne. So this is the difference between the two. Also, if you are taking care properly throughout the teenage, आपने कर दिया अच्छा स्किन केयर और लाइफस्टाइल कमिटमेंट, उनका रेमिशन, रेमिशन मतलब आपका सिम्टम फ्री पीरियड, कि अब मेरे को एक्ने चले गए बिल्कुल, उनका हमने ज्यादा देखा हुआ है। कि आपने अच्छा केयर कर लिया पहले ही, यू आर एबल टू हैव एन अडल्ट विथ एक्ने फ्री स्किन। So, coming to the lifestyle and prevention, so what lifestyle habit can worsen the acne? सर ये जो हमने पहले तो डिस्कस कर ही लिया, खाना पीना, हाँ, एक्सरसाइज। काफी ऑल्सो कुछ हो गया। सेल फोन जो हम बार बार यूज करते हैं इतना, तो बच्चों में खैर मेरा तो बहुत मानना है कि दैट हैज टू बी वेरी टाइम लिमिटेड। योर आईज, योर स्किन, योर वेलबींग, मुझे लगता है सब हैम्पर हो जाता है सेल फोन के सामने, गैजेट्स के सामने। खैर वो मिनिमाइज करना पड़ेगा, टोटली तो हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे शायद, उनकी स्टडीज वो सब भी काफी कुछ गैजेट ओरिएंटेड हो गया है अभी। बट उसको आप मिनिमाइज करके रखें। आपने स्मॉल स्मॉल हॉबीज को पिकअप करना है। वाई आई एम सेइंग अबाउट द गैजेट्स, इसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका सेल फोन हो, इसमें से जो विजिबल लाइट निकलती है उससे स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। तो फ्रॉम गेटिंग पिगमेंटेड अराउंड द आईज टू एक्ने इरप्शंस टू पिगमेंटेशन एंड एक्ने स्कारिंग, ये सब बढ़ जाता है अगर आपका टाइम ड्यूरेशन इज क्वाइट हाई ऑफ गैजेट।
तो थोड़ा लाइफस्टाइल कमिटमेंट में अगर फोन्स गैजेट्स का इस्तेमाल थोड़ा कम हो जाए तो दैट विल हेल्प इन हीलिंग ऑफ द स्किन मच बेटर बिकॉज हम्म। ऑफ द ब्लू लाइट। पर वो देख के छूटता नहीं ना। हाँ, छूटता बस नहीं इसके लिए। बिल्कुल छोड़ना तो बिल्कुल। सब चाहते हैं पर छूटता नहीं हो। बिल्कुल। मेरी नानी का सबसे फेवरेट वर्ड और उन्होंने पूरी जिंदगी उसको फॉलो किया सर, संतुलन में रही हमेशा। एवरीथिंग वॉज इन मॉडरेशन फॉर हर। चाहे वो बहुत पसंद आया खाना भी होता वो उतना ही खाती, नहीं पसंद भी रहता तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है तो उतना खाती। तो हम्म। मॉडरेशन इज द की। ऑल ऑफ अस हैव टू जस्ट क्रिएट दैट बैलेंस कि कितना करना है और कितने में छोड़ना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ऐसे डाइट में क्या उनको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आ, और क्या इंक्लूड करना चाहिए डाइट में कि जिससे कि एक्ने नहीं आए। सर सबसे पहले रिफाइंड शुगर को आपने रिप्लेस करना है, जैसे मैंने कहा विद जैगरी पाउडर। आप या बंद तो नहीं कर सकते, हम संतुलन में ही नहीं। रहेंगे। मीठा नहीं बंद करेंगे बट रिफाइंड प्रोडक्ट्स बंद करेंगे। हम्म। तो वो दूसरा आपने जंक और प्रोसेस को एक मील इन अ वीक कर देना है। हम्म। रोज लोग खाते हैं, ब्रेड खा लिया, बाहर का वड़ा पाव खा लिया, कुछ खा लिया, हमारे इधर तो काफी होता है इन अर्बन सिटीज। तो वो मिनिमाइज, एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट नो। आपने उसको एक ट्रीट मील करना है, वन मील इन अ वीक। सेकेंड, बहुत हैवी कैलोरी डाइट इज नॉट वेरी हेल्पफुल। तो वो आपने हम्म। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स का जो फाइबर का थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना है। बहुत लेट नाइट ईटिंग इज नॉट ओके। गट खराब होगा, स्किन खराब होने ही वाली है। तो आप 11-12 बजे खा रहे हैं, फिर वो सारे टॉक्सिन्स हैं, वो सब आपकी स्किन क्लियर हो ही नहीं सकती। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको क्लियर स्किन चाहिए, वो हो नहीं सकती। सो दिस इज वेरी बेसिक एंड नॉन निगोशिएबल। तो वेरी लेट ईटिंग नॉट अलाउड, 8 बजे के आसपास तक कर दीजिए। आपका फाइबर इंटेक, वाटर इंटेक कंपलसरी है। जंक फूड को कुछ चीजें इज स्ट्रिक्ट नो। वो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो या वो सब इज स्ट्रिक्ट नो फॉर किड्स। वो मैं नहीं कंफर्टेबल रहती हूँ उससे, तो आपको बहुत स्किन डैमेज हो जाता है। तो वो हम्म। नहीं। और अगर आप गेहूं के बजाय थोड़ा सा आप ज्वार बाजरी नाचनी ऐसे थोड़ा रिप्लेस कर पाए, या थोड़ा फाइबर वाला बहुत रिफाइंड गेहूं का आटा ना यूज करते हुए, थोड़ा खपली गेहूं कहते हैं उसको, तो जितना बेसिक और जितना नेचुरल उतना फिर बहुत बेटर रहता है। जितना नेचुरल खाना खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उतना बेस्ट रहता है सर। तो मुझे हाँ। वही पूछना है, सर आप क्या खाते हैं कि आप ऐसे लग रहे हैं इतने बढ़िया? आई एम जस्ट लुकिंग एट योर स्किन, आपका ग्लो बहुत वंडरफुल लग रहा है मुझे। तो बस वो जो है खाना उसी को हमें स्टिक करना है। और दूसरा सर, पैकेज फूड में बहुत देखती हूँ बच्चों के, इसमें चिप्स चॉकलेट की बहुत आदत हो जाती है। बाहर के जो चीजें निकलती है पैकेट से, हम्म। उसमें पाम ऑयल यूज होता है जो बहुत डेंजरस है स्किन के लिए। अलॉन्ग विथ हेल्थ इशू स्किन में भी बहुत नुकसान करता है। तो पैकेज हम्म। फूड के लिए आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। उनको अगर कुछ चिप्स खाने हैं, फ्रेंच फ्राइज खानी है, हफ्ते में एक बार थोड़ा सा पोर्शन घर में बना लें। आजकल अर्बन सिटीज में सबके पास एयर फ्रायर होता है विच इज लेस डैमेजिंग। तो वो हम्म। चीज आप थोड़ा सा घर के इसमें कर दें। एकदम वंचित करेंगे तो रिबाउंड हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसके ऑल्टरनेट्स घर में थोड़े हेल्दियर ऑप्शंस ढूंढें, वो बेटर रहेगा। और जिम और स्वेटिंग हैज गॉट जी। एनी रोल फॉर इन एक्ने? यस सर, टीनेजर्स को आई स्टिल प्रेफर कि वो थोड़ा स्पोर्ट्स अपने गेम स्पोर्ट्स में रहे। एकदम जिम में बहुत ज्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ टीनेजर्स के लिए। हम्म। बट जिनका भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यादा रहता है, उनको एक्ने की एक कंडीशन बोली जाती है ट्रंकल एक्ने, जो आपको शोल्डर चेस्ट और अपर बैक में, पूरे बैक में आपको पूरे दाने 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 करके आ जाते हैं, जो आपके जल्दी जाते नहीं है। और पूरा इट कैन गिव यू लॉट ऑफ पिगमेंटेशन एंड समटाइम्स इवन पेनफुल एक्ने विद स्कार। तो ट्रंकल एक्ने एक्सरसाइज और स्वेटिंग की वजह से एग्रीवेट होते हैं। प्लस आपके जो स्वेट के वो कपड़े होते हैं एथलीजर स्पोर्ट्स के कपड़े, दे डोंट अब्सॉर्ब द स्वेट। तो कई बार बच्चे थोड़ा टीनेजर्स आके नहाना नहीं है शाम में, थोड़ा हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, बस बैठ जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो वो अवॉइड करके यू मस्ट कम बैक फ्रॉम द शावर, कम बैक फ्रॉम द स्पोर्ट्स, इमीडिएटली आप नहा लें। इसके अंदर बॉडी वॉशेस होते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड बॉडी वॉशेस मिलते हैं, जो बहुत अच्छे से पूरा स्वेट इंड्यूस्ड जो क्लॉगिंग होता है, ऑयल सेक्रेशन होता है, उसको पूरा अच्छे से क्लियर कर देते हैं। हम्म। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड चेस्ट बैक और शोल्डर पे जो एक्ने आते हैं उसके लिए आपने थोड़ा सा एक जेल स्प्रे और बॉडी वॉशेस आते हैं उसको यूज करना जरूरी है। तो आगे बढ़े अपन वार्ता को आगे बढ़ाते हुए। तो डज इट हैज इफेक्ट ऑन द
mental health and self-esteem of the children when they are suffering from acne? 100% सर, 100%। इसके लिए एज केयर गिवर्स हमें एम्पैथी होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड व्हेन दे कम टू डिस्कस कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, मुझे फेस पे ये आ रहे हैं, और आपने उनको इमिडिएटली झटक दिया, अरे कुछ नहीं होता, ये तो नॉर्मल है, ये तो चले जाएंगे, फिर तकलीफ क्या होगी? दे आर गोइंग टू रिजोर्ट टू रॉन्ग मेथड्स। फिर वो टूथपेस्ट लगा देंगे, फिर वो स्क्रैच कर लेंगे, फिर वो और कुछ अलग ऑनलाइन चेक करके कुछ अलग क्रीम्स, गलत क्रीम्स लगा देंगे, जिसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। So that has to be completely avoided. सबसे Hmm. पहले it has a huge impact on how we present ourselves. हमको अगर दिक्कत होने वाली है, वो तो बच्चे हैं, उनका पीयर प्रेशर और ज्यादा है, बिकॉज वो अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में है, दे आर डेवलपिंग देयर पर्सनालिटी। तो उनके इसमें कैसे हो जाता है सब पैसे, अच्छा कौन वो, अच्छा जिसकी बहुत फेस पे पिंपल्स हैं, वो टू बी रिमेम्बर्ड लाइक दिस, जिसके बहुत दाग है चेहरे पे, वो वाली, अच्छा वो है वो, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ऐसे यू डोंट वांट टू बी रिमेम्बर्ड और स्पोकन अबाउट लाइक दिस और मॉक्ड इन द स्कूल। सो ये बहुत इम्पैक्ट करता है, मोर सो नाउ, क्योंकि सब कुछ रील्स और सोशल मीडिया एंड हाउ यू सी थ्रू द फिल्टर, वो वाला जमाना आ गया है। तो हमको इसको ट्रीट करना, नॉट ओनली फॉर द स्किन एंड डैमेज, बट ऑल्सो फॉर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, उसको ट्रीट करना जरूरी है सही समय पे। Hmm. How the parents can help when the children are suffering from acne and they are in low self-esteem? तो सर सबसे पहले कैसे, आपने घर में कई बार बोल के इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू हियर एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट गेटिंग एन इमोशनल एंगल टू इट, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द किड्स आल्सो टू कंटिन्यूअसली हियर पीसेस ऑफ एडवाइस। तो वो थोड़ा कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू ग्रास्प, और आप तभी ऑलरेडी वो मैटर को लेके सेंसिटिव होते हैं। सो प्रोफेशनल हेल्प, रीचिंग आउट टू योर केयर गिवर, आप पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, आप डॉर्मेट के पास आ रहे हैं, हु आर एबल टू हेल्प यू रिजॉल्व, प्रॉब्लम में ना फंसते हुए उसका सोल्यूशन निकालना है हमें, तो वो आपको गाइड करेंगे। एंड समटाइम्स इट इज द पोजिशन ऑफ पावर भी होता है सर, जब आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उन्होंने आपको हमेशा से ठीक किया हुआ है, तो आप उनकी बात थोड़ा ओपन माइंड से सुनते भी जरा जल्दी हैं। तो आपने एज अ पेरेंट आई वुड स्टिल प्रिफर कि अगर वो सेंसिटिव मैटर हो गया है, यू रीच आउट, टेक प्रोफेशनल हेल्प। आपने डर्मेट या पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, आपने उनके साथ बैठ के हाउ डू वी मैनेज दिस विथ मिनिमाइजिंग, आपको अगर कंसर्न है कि नहीं अभी हम जाएंगे तो डरमेट तो आपको बहुत सारी टैबलेट्स दे देंगी जो हमको देना नहीं है, तो अब क्या किया जाए? हैव अ कॉन्वर्जेशन कि सर हमको गोली के बिना चलेगा, अगर हम क्रीम्स यूज करेंगे क्या इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इनको लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ेगा? एज अ टीम यू हैव टू फंक्शन। तो वो आपने जब क्लैरिटी दे दी, जब हम कहेंगे कि नहीं हम उनको एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, हम सिर्फ क्रीम्स दे रहे हैं, ये क्रीम्स के अंदर ये चीजें हैं जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स वाली बात नहीं है, थोड़ी ड्राइनेस और ये होती है, आपने इसको इस्तेमाल करना है, और उसके साथ मिलके खाना पीना। आई हैव सीन सम पेरेंट्स एज अ फैमिली दे गिव अप कि ओके चलो हम भी नहीं खाएंगे डॉक्टर साहब, हम भी जंक फूड प्रोसेस फूड बाहर का नहीं, एज अ फैमिली वी आर गोइंग टू गेट हेल्दियर। तो वो एक टीम Hmm. जो रहती है, जब वो बन जाता है ना सर, तो वो रिजल्ट फिर बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। सो Family diet can matter a lot when children are 100%, suffering. 100%। वो एक इकोसिस्टम, एक होलिस्टिक अप्रोच कर दिया, एक आपने सेफ जोन बना दिया फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, और सबकी एनर्जीज एक ही तरफ डायरेक्टेड है, तो वो बहुत फिर मजा आ जाता है। Definitely, it is supportive to the child. हाँ, और वही चीज अगर आप डर्मेट के पास या आपके पीडियाट्रिशियन के पास आके, ये तो सुनती ही नहीं, ये तो करते ही नहीं है, ये तो बाहर का ही खाते हैं, वो सर वो पूरा आपका वो कॉन्वर्जेशन ही नेगेटिव लूप में, फिर उसके बाद आप कितना भी उसको इसमें डालो, वो पूरा आपने शुरुआती आपकी मूवी की गड़बड़ हो गई। सही बात है. So, what are the common mistakes teenager make, girls and boys? I have observed one. जब बताइए। यस, एब्सोल्युटली सर। ये क्या हो जाता है, क्योंकि सर किसी को भी चेहरे पे, कोई भी हो, उनको चेहरे पे कुछ बहुत आ गया, सडनली अरे बचपन में तो इतने सुंदर थे, अभी क्या हो गया? अरे बचपन में पिंपल्स नहीं आते, अभी आएंगे, तो अभी Hmm. मुझे थोड़ी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। तो ये Hmm. चीज सुन के आदमी डिप्रेस हो जाता है। सेकंड, फिर क्या होता है, यूर इन डेस्परेट मूव टू टेक केयर ऑफ इट, तो आप उसको टॉवल से रगड़ लेना, आपने उसको पिंच करके स्क्वीज करके फ्लैट कर देना, उससे आपके पिंपल्स 4 गुना बढ़ेंगे और आपको स्कारिंग पिगमेंटेशन भयंकर वाली होगी। ये पिंचिंग वाले एक्ने को हम कहते हैं एक्ने एक्सपोरिया। सो इट कैन बी अ वेरी बैड हैबिट, और वो पूरे आपको फेस पे स्कारिंग, और उसका फिर ट्रीटमेंट डबल द टाइम लगता है हमें रिजॉल्व करने के लिए। तो वो चीज
pinching, pricking, scrubbing the face, not allowed. Using steroids as an instant relief for acne, absolutely wrong. Using products which are not age appropriate, तो वो नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी हमने फेयरनेस के लिए विटामिन सी सिरम यूज कर लिया और कुछ रेटिनॉल सिरम, वो आपके एज के लिए है ही नहीं, मतलब वो फिर मैच नहीं करेगा। तो वो आप करोगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। आपको एज अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स जो आपके स्किन के लिए। सेकंड, मेरी फ्रेंड ने वो क्रीम यूज की थी, उससे उसके पिंपल्स चले गए तो मैं भी यूज कर लूंगी, तो ऐसा नहीं होता। उसकी वजह से आपको उसको सूट हो गई, उनके लिए वो बेस्ट था, आपने यूज कर लिया, आपको रिएक्शन हो गई, तो वापस से वो 10 स्टेप्स बिहाइंड टू रिपेयर दैट। तो ये कॉमन चीजें थोड़ी सी अवॉइड करेंगे तो हमें जल्दी इससे रिलीफ मिल सकता है। What is the popping pimples harmful? Why is सर, the popping pimples harmful? जैसे आपने कहा सर कि सबसे मैं कॉमन चीज देखता हूँ कि बच्चे पिंच कर लेते हैं, तो जैसे आपने उसको पिंच प्रिक किया, आपने अंदर का जो प्रेशर है तो वो आपने बर्स्ट किया, तो फ्लूइड बाहर निकला, ब्लड बाहर निकला, पस बाहर निकला, सीबम बाहर निकल गया, तभी के तभी वहां का इन्फ्लेमेशन तो कम हुआ। मगर जैसे आपने उसको पिंच किया, अंदर से जो है वो फिर बाकी के हेयर फॉलिकल्स को इन्फेक्ट होने के लिए वो बैक्टीरिया ने ट्रैवर्स कर लिया, तो आपको सराउंडिंग एरिया में 4 नए पिंपल्स और आ जाएंगे। Hmm. ने जैसे ट्रॉमा क्रिएट किया, आपको खट्टे भी छूट जाएंगे, दैट इज नोन एज स्कार्स, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव पिगमेंटेशन आल्सो, मार्क्स। सो वो जो चीज अपनी रिजॉल्व होने वाली थी विदाउट स्कारिंग एंड मार्क्स, अब उसके वो 1 के 4 हो गए और उसका स्कारिंग भी हो गया। Hmm. So what are the safe home remedies, if any? अगर जिसको हाँ, डर्मा के पास नहीं आना है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आता है कुछ। एवरीथिंग हैज प्लस माइनस। तो आपने जैसे ऑयल कंट्रोल वो प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसके अंदर मुल्तानी मिट्टी आ जाती है, नीम पेस्ट आता है विद एंटी बैक्टीरियल, वेरी उसके गुड। अंदर आपका रोज वाटर आ जाता है विच इज ऑयल कंट्रोल। तो वो एक सही प्रपोर्शन में आप यूज करें तो आपका ऑयल कंट्रोल भी रहता है, पोर्स आपके, थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम रहता है। तो फ्यूलर्स अर्थ जो हम मुल्तानी मिट्टी को बोलते हैं, फ्यूलर्स अर्थ, रोज वाटर, ऐसे आपने मिक्स करके आपने थोड़ा लगा लिया फेस पे, इट्स गोइंग टू काम द स्किन। टर्मरिक अगेन हैज लॉट ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, कर्क्यूमिन रहता है उसमें, जिससे आपका इन्फ्लेमेशन, एक्ने, रेड वंस, पिगमेंटेशन कम हो जाती है। तो वो आपने कभी यूज कर लिया थोड़ा सा। बेसन, बेसन अगेन इज सीबोस्टैटिक, आपका ऑयल कंट्रोल करता है, तो वो सब मिक्स करके आपने कभी लगा दिया, तो दीज होम रेमेडीज कैन हेल्प। सो वो आप थोड़े लेवल तक अगर उसको लेके जाना चाहें तो देयर इज नो हार्म। When to see a dermatologist? सर Very ए, important question. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ए, अगर चाइल्ड इज वेरी एंग्शियस तो तभी थोड़ा सा सही समय पे गाइडेंस आपको मिल जाए फ्रॉम अ डरमैट हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, तो एक पेरेंट के पास एक अप्रोच के लिए एक रास्ता मिल जाता है कि ओके दिस इज द वे आई वांट टू डू। जरूरी नहीं है कि आपको गोलियां ही स्टार्ट करनी है, बट हाउ टू अप्रोच एक्ने विच मे लास्ट फॉर द एंटायर टीनेज, उसको कैसे डील करना, एक मेंटल एक आपको भी थॉट प्रोसेस मिल जाता है, आपको एक रास्ता मिल जाता है। सेकेंड, इफ योर एक्ने इज कमिंग टू द सिवियर ग्रेड, आपके ग्रेड 2 से अगर आपको पस्ट्यूल्स पैप्यूल्स आना शुरू हो रहे हैं, तो आपने इमीडिएटली फिर उसको ये करना है, बिकॉज उसकी स्कारिंग की टेंडेंसी होती है। तो थोड़े अगर आपको पिंपल सिवियर आ रहे हैं, आप उसको नोच रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, प्रिक कर रहे हैं, आपका ऑयल सेक्रीशन ज्यादा हो रहा है, इसके साथ साथ अगर आपको अलग चीजें भी दिख रही है कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जा सकता है, तो इसके लिए हमको एक बार डर्मैट को दिखा के उसको सॉर्ट करना जरूरी है। Mhm. So what are the prevention tips? सर एक सिंपल सा, एक गुड क्लेंजर कैन गो लॉन्ग वे। आप अच्छा फेस वॉश यूज कीजिए, फेस क्लीन होगा तभी जाके आपका ऑयल सिक्रीशन कम रहेगा। सेकेंड, आप कुछ भी यूज करोगे तो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होगा। Hmm. सेकेंड चीज मैंने देखा है, हर 2-2 घंटे से बच्चे फिर मुंह धोना शुरू कर देते हैं कि ऑयल कम हो, ऑयल कम हो, तो स्किन और डबल स्पीड से ऑयल बनाएगी, क्योंकि और आप रिप्लेनिश करने के लिए बॉडी और डबल स्पीड से उसको कर रही है। तो इतना रिपीटेड फेस वॉश ना करें। एक अच्छा ऑयल कंट्रोल फेस वॉश अनक्लॉगिंग के लिए सिंपल सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक एसिड के आते हैं, दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार यूज करते हैं। Hmm. That helps. A good moisturizer which can balance the water in the skin, hydration in the skin, that helps to calm the skin. अच्छा सनस्क्रीन जो केमिकल फ्री हो, बच्चों के लिए हो, ये 2-3 चीजें स्किन केयर की आपने मैंडेटरीली करनी है।
इसके बाद आती है आपकी कि ओके कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने जाके हैं, कि मेरे एक्ने आ गए हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आ गए हैं, क्या मैं यूज कर सकती हूँ जिसका टॉक्सिक इफेक्ट या बहुत ज्यादा नुकसान मुझ पे ना हो मगर मेरी स्किन बेटर हो जाए। Hmm. So, what are the three golden tips if you want to give to the parents, boys and girls, teenager? You know, तो they आई so हाँ they remember all the time that Dr. Raina Nahar has told us three tips, and we need to follow. And otherwise, we'll have to visit to Mumbai. सो स्वीट। सो सर बेसिक थ्री टिप्स आपका बैलेंस एक क्रिएट करके रखिए लाइफस्टाइल में। आप अपना स्किन केयर स्ट्रेस फैक्टर्स आपका खाना पीना सब संतुलन में रखें। स्किन केयर एकदम बेसिक रखें, तो अ गुड क्लेंजर, अ केमिकल फ्री मॉइस्चराइजर स्किन केयर विच हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्किन एंड मेंटेनिंग द स्किन लॉन्ग टर्म। तो ऐसे नहीं कि मेरे एक्ने क्लियर हो गए तो फिर मैंने सभी कुछ छोड़ दिया। एक सिंपल सा स्किन केयर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दैट विल हेल्प अ लॉट। एंड कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी एज अनुसार नहीं है उसको इस्तेमाल ना करना। थैंक यू सो मच रेना जी। खूब आनंद आया आपके साथ शॉर्ट विजिट में, एक तरह से देखा जाए तो नेट पे जी आपके साथ। और आई एम श्योर दैट ऑल द व्यूअर्स, पीडियाट्रिशियन, टीनेजर्स, पेरेंट्स, दे मस्ट बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू हर। एंड उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सुंदर तो हैं ही, सब बच्चे आज के हमारे देश के और भी ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, ऐसे क्या। ऐसा मेरा मानना है। और रैना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुंबई सही के शहर में से, बिजी टाइम में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करा। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर ये अपॉर्चुनिटी के लिए, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसे मुझे लग ही नहीं रहा है कि हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है, ये तो ऐसा लग रहा है बहुत समय से आपकी और मेरी मुलाकात है, परिचय है। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू शेयर दिस टाइम विथ यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स।